Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की भी और खबरों की बारीकियों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपलब्ध हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट कुमार विजय। कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। धन्यवाद। एंड नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। ओवर टू यू, लालिमा. Thank you, Harsh. Yes, friends, the headlines first. Indian benchmark indices end flat. Sensex loses 0.01% while Nifty settles at 25,280. World Bank raises India's growth forecast for current financial year 2024-25 to 7%. Robust finance sector crucial for underwriting India's inclusive and sustainable future, says Deputy Governor RBI. And crude oil prices slip today as sluggish economic growth in China accelerates demand concerns. भारतीय शेयर बाजारों में आज कोई खास बदलाव नहीं। सेंसेक्स निफ्टी कमोबेश कल के ही स्तर पर बने रहे। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का आंकड़ा बढ़ाकर 7% किया। पहले यह आंकड़ा 6.6% था। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कहना है कि भारत के समावेशी भविष्य के लिए मजबूत वित्त क्षेत्र बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। और चीन में धीमी आर्थिक विकास के आंकड़ों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आज थोड़ी गिरावट का रुख रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजारों की, जहां आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। कल के ही आंकड़े पर सेंसेक्स निफ्टी बने रहे। निफ्टी में मात्र एक अंक की बढ़त रही और ये 25,280 पर रहा। सेंसेक्स में मामूली सी 4 अंकों की गिरावट रही और ये 82,555 पर रहा। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें से 145 कंपनियों के शेयरों ने आज पिछले एक साल यानी 52 हफ्तों की ऊंचाई देखी, जबकि 28 कंपनियों के शेयरों ने पिछले एक साल यानी 52 हफ्तों की जो न्यूनतम स्तर था वो देखा। विस्तारित बाजार की बात करेंगे। बीएसई मिड कैप में 0.2% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.5% की बढ़ोतरी रही है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 13 कंपनियों के शेयर आज बढ़त में बंद हुए। And now the stocks in detail. India's equity benchmark indices Sensex and Nifty ended flat in the range-bound trading session today. The Sensex ended in negative territory while the Nifty closed marginally higher. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was down 4 points or 0.01% at 82,555. NSE Nifty settled flat, just a point up at 25,280. In the NSE, 145 companies hit their 52-week high, 28 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, mid-cap index gained 0.2% and small-cap index rose 0.5%. In the Sensex index, 13 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were ICICI Bank, which gained more than 1.5%, Bajaj Financial Services increased more than 1%, and Titan added more than 0.5%. Conversely, the major laggards were Infosys and Bajaj Finance, which lost more than 1%. Adani Ports, JSW Steel, HCL Tech and NTPC shed nearly 1%, and Bharati Airtel and IndusInd Bank declined 0.83% each. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 20 sectors traded in loss. The top laggards were utilities, lost 0.77%, oil and gas,
shed 0.69% and metal was 0.59% down. The top gainers today were consumer durables, which got an uptick of 1.27%, financial services gained 0.68%, and capital goods added 0.62%. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,054 companies, shares of 1,999 companies advanced, 1,938 declined, and 117 remained unchanged. So, Kumarji, as they say in English, no news is good news. Sensex ended flat, but it has been rallying. And what is the limit, one keeps wondering, because I remember a few months ago during COVID period, we were talking about 60, 65, and somebody said it'll touch 80, and we thought it was just maybe a joke. But yes. And people have started talking about that's 100,000. Absolutely. Yeah. That's the way they have started talking. See, 2-3 things are there that undoubtedly every expert is surprised, because it is heading towards a kind of a very strong correction, and that correction will be there, but correction is every time getting delayed because of few important reasons. One is that, of course, domestically, whatever the figure is appearing, all the figures are giving a good positive sentiment to the market. So sentiment is highly positive. Even internationally, you will find out internationally also some news are there. Of course, like US economy, if you find out, we are in September, where long waited rate cuts are also expected now, and by mid-September it will be more clear because the way they are heading. So these are the certain aspects where we feel market is getting a strength, and even if market is having some kind of sales pressure, because of these positive news and the small investor, retail investor, and I'll be putting a very different term now, young investors, Yes. they are taking market on the upper side. One another very interesting part is there. Even if you'll find out the movement in the market doesn't have the positive correlation with sectors. Like if you talk about large cap and mid cap and small cap, they are not moving in tandem. Sometimes large cap is pulling it down and a small and mid cap is taking it, and they are balancing the market. That's why you'll find out even in today's market, pre-lunch it was really in a raid, moving down, but ultimately you'll find out that it has, managed to go back to that point, and 5 point or 4 point down is not a down, or 1 point plus is also not a plus. It is a kind of a true flat. Yeah. So this simply indicates that. And third, last part is there. Now we are in September month, and from Indian perspective, you'll find out that it is going to be a festive season now. A lot of purchasing will be there, which has been indicated through your consumer goods market movement, which is 1% plus, has indicated today also, even in a flat market. Yes. So that's a 1% positive side. Yes. That simply indicates that, yes, in this month we have lot of consumer part. In fact, they say that, some people feel that India can never go into recession kind of a thing the way developed nations do, because we have so many festivals every month, and we have a season. So there is so much of exchange taking place, buying, selling, interacting. So how can we ever go into recession? Very correct. And in these festivals, you'll find out, even not necessarily a bigger company, actually the smaller one, the micro units, they get a good opportunity. Yeah. And sometime it has been a kind of saying that you can earn 1 month in this 1 or 2 months in festive season for whole year. Right. That kind of earning is there in this festive season. So India is really, it's a social fabrication, and all those festival is taking care of economic development. Absolutely. और साथ ही लालिमा, आपने जो बताया कि फेस्टिवल की वजह से लोगों की खरीदारी जारी रहती है, साथ ही आप देखें कि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है 140 करोड़ का, ये न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, डोमेस्टिक परचेजर्स के लिए, बल्कि ये दुनिया के लिए बहुत ही एक ऐसी जगह हो गई है जिसको लोग इन्वेस्टमेंट हब कह रहे हैं और शाइनिंग स्टार कह रहे हैं. बहरहाल हम आते हैं मार्केट पे अभी आप कुमार बात कर रहे थे. आज का तो मार्केट फ्लैट रहा, बिल्कुल कल थोड़ी बहुत इसमें अच्छी ऊंचाई देखी थी, तेजी रही थी,
लेकिन ये भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि निफ्टी जो है, निफ्टी 50 आई मीन 25,300 से 25,400 के लेवल पे उस पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। सवाल है कि ये रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, और अगर 25,400 के लेवल को पार कर रहा है तो ये कहां तक जा सकता है। और एक इससे ही जुड़ा सवाल है कि अगर आप विज़ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें, बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश अभी चल रहा है, जबकि निफ्टी 50 में काफी तेजी हमने देखी। जी निफ्टी 50 का मूवमेंट जो आप देख रहे हैं, ये ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन तो है ही इनका। ये पॉइंट जहां पे निफ्टी 50 अभी है, ये पूरा अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी लगा रहा है, बट यू आर वेरी राइट कि वो एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस उसका लेवल पे है। लेकिन अब देखिएगा मैक्सिमम टाइम ये अपर बाउंड को ही रहता है। तो जब अगर आप टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, और मार्केट टेक्निकली अगर अपर बाउंड की तरफ ज्यादा रहता है, तो उसमें पोटेंशियल, उसकी प्रोबेबिलिटी अपसाइड निकलने की ज्यादा होती है। अगर वो टच करके नीचे गिरता है तो उसकी पॉसिबिलिटी नीचे आने की ज्यादा होती है। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब रह गई बात कि उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए कहां से उसके पास एक एनर्जी सोर्स आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, और उस सेक्टर की बात अगर देखेंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि अभी जो ये अपसाइड के पीछे कारण ये है, आपके न्यूज में भी था 145 ऐसी कंपनियां हैं जो 52 वीक्स के हाईस पे हैं, और वो 145 में अगर देखिएगा मोस्ट ऑफ देम अगर कोई न्यू क्लू लेके, कोई न्यू मार्केट टिप्स लेके अगर वो आगे बढ़ता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है, तो सर्टेनली आप देखिएगा कि न्यू रेंज में मार्केट इन कर जाएगा। अब बैंक के इंडेक्स की बात अगर कहेंगे, बैंक एक्स की बात करेंगे, तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कैपेक्स हो रहा है, और जो गवर्नमेंट के कुछ कैपिटल रिलेटेड वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो बैंक को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा सपोर्ट करेगा, और जो लैगिंग है वो कवर कर लेगा, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और बैंक में देखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी फेस्टिव सीजन की हम लोग बात कर रहे थे, फेस्टिव सीजन में स्मॉल ही सही कंज्यूमर लोन्स जो होते हैं, जो ड्यूरेबल आइटम्स के, हाउस होल्ड आइटम के लोन होते हैं, हम क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो दशहरा और दिवाली है, दिवाली इज वन ऑफ द मेन प्लेस ऑफ द परचेजिंग, और सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होता है, चाहे वो ऑटो फाइनेंसिंग हो, मकान खरीदते हैं, या इवन हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं, जो ड्यूरेबल्स हैं, बहुत बड़ी सेल्स होती है। तो बैंक के लिए एक बहुत अभी कह सकते हैं कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, और ये सीजन ही उनका है। दिवाली से पहले तो नवरात्रि आएगी, उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग टेकिंग प्लेस, हाउस एंड और लालिमा, अभी आने वाले समय में जैसा कुमार बता रहे थे, लोन सेगमेंट में भारत एक नई क्रांति लाने जा रहा है, क्योंकि अभी हमने पिछले ही दिनों देखा कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि किस तरीके से यूपीआई की तर्ज पर आपका यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इससे लोन लेने में काफी आसानी हो जाएगी। जिस आसानी से आज हम कहीं भी पेमेंट कर लेते हैं, 25 पैसे 10 पैसे से लेकर हजारों रुपए तक का, उसी तरीके से आपके सारे डेटा, ये यूएलआई जो है एक बहुत ही, इसको अप्रूव कर दिया है आरबीआई ने, और इसका जो टेस्टिंग थी वो बहुत सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। आपके सारे डेटा उपलब्ध रहेंगे एक क्लिक पे, यानी कि आपको जब भी लोन की जरूरत होगी, फटाफट आपने लोन की अपनी रिक्वायरमेंट दबाई और उधर से आपका लोन अप्रूव होके आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो जो आप कुमार बता रहे थे, आने वाले समय में ये बहुत ही एक और अच्छी बात है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी रेडी है। जो सिविल स्कोर की तरफ देखते हैं, और जिसके पास मतलब सारे इंडिविजुअल जो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से लोन लिए हैं, उनका स्कोर बना पड़ा हुआ है। अच्छा, जो अकाउंट है वो बना हुआ है। और इंटरेस्टिंगली कि ये स्कोर आज आपके जो पूरे 2000 ईयर से ऑनवर्ड, मतलब पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उसमें रखा हुआ है। तो आप मतलब पूरी क्रेडिट हिस्ट्री अगर है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो डिफॉल्ट होगा, एटलीस्ट विलफुल डिफॉल्टर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी। तो इसको यूनिफाइड आराम से किया जा सकता है, इसको ईज किया जा सकता है बहुत। और हम इस मंच से बल्कि अपने श्रोताओं को लगातार आगाह भी करते रहते हैं और जानकारियां भी देते रहते हैं कि सबको, आपको अपना क्रेडिट स्कोर क्या है ये जरूर इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पहले ये पता करने के बैंक थोड़े बहुत पैसे लेते थे, चार्जेस, अब ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने बैंक के वेबसाइट पर जाएं, ऐप यूज करते हैं तो
तो वहां जाएं, वहां सिविल स्कोर होगा आपका। आपने अगर क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया है, किसी भी तरीके का क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपने इस्तेमाल की है, तो आपने कैसे उस लोन को चुकाया है, आपका क्या पैटर्न रहा है, आपके लोन चुकाने का बिहेवियर क्या रहा है, इस आधार पर आपकी रेटिंग होती है। कुछ भी 7 से ऊपर की रेटिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी, और अगर आपकी रेटिंग 6 से नीचे है, 5 से नीचे है, तो उसमें थोड़े सुधार की गुंजाइश है जी। In fact, I think, Kumarji, that every time we move a step towards digitization, I'm talking about India's digitization story, the great story of India's digitization rather, now from UPI to ULI, every time when we got UPI, we thought that is the limit. When we said we are trading in in rupee, in rupees being internationalized, we said, okay, maybe that's the limit, 20 countries being traded in rupee. But it seems that sky is becoming the limit now. We are progressing. True, ma'am. And actually, the kind and quantity of potential we have got into it, it's not only for India, even from India for rest of the world also. It is going to be like anything. And honestly speaking, now we are right now in some places we are second ranking, third ranking, and even latest the UPI transaction which has been there, which is very impressive in nature. Yes. And we are hardly on the first chapter of the entire book of the digitization, because the quantum and the scope which we have got is unlimited, and the kind of synergic leverages which is expected from one sector to another sector related to this payment will be marvelous. And that is the way we will be actually taking the finance and financial product and payment system and transactions to that global level. So certainly every time, and now these surprises will start coming very frequent, because ground is ready, only the play and policy has to show their result. Right, That right. is what. Well said. This is just the first chapter, so way to go still. All right, great. Let's move on. और हम बता दें कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले आज थोड़ा कमजोर पड़ा है। क्या है पूरी खबर? विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मजबूत प्रदर्शन और घरेलू इक्विटी में सुस्ती के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरा और $1 की कीमत 83 रुपये 96 पैसे रही। डॉलर इंडेक्स, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती का संकेत देता है, इंट्रा डे ट्रेड में यानी दिन के कारोबार के समय 101.83 पर कारोबार कर रहा था। How do you view India's stability of rupee at around 83 rupees? More or less, it's been like that for a long time. It's ironic because what's good for export is not good for import and vice versa. So at 83 rupees approximately? This range is right now, it's well settled and accepted and digested in the Indian market, especially the international trade market. And of course, this level is considered little better to the exporters, and we also want that our global competitiveness should be there, keeping Chinese economy and Chinese sales in the mind, and looking into the global market scenario. India has to strengthen its position, and that will be possible only when our currency will also be supporting. Second, it will be not having that impact requirement right now, because India is also looking into alternatives like bilateral currency transactions or barter transactions, where it is instead of routing through the dollar, we can have rupees versus that current country's currency. So that acceptability of rupees will also be helping us in getting that a strong, good input. Yes, keeping so, our country is still import intensive, because we are still talking current account deficit, and that's why we have to be visible related to these movements. We can't simply be ignorant about that. Right. And that is what needed. Right. और भारत के शेयर बाजारों सेंसेक्स निफ्टी की हमने बात कर ली। अब थोड़ी बढ़ते हैं दुनिया की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों का क्या हाल रहा। एशियाई बाजारों में आज गिरावट रही है। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों में से 4 में बिकवाली का दौर रहा है। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.61% गिरा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.29% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.23% गिरा है। जापान के निक्केई सूचकांक में भी मामूली गिरावट रही। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% मजबूत हुआ।
यूरोपीय बाजारों की बात करेंगे। प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी निवेशक उदासीन ही दिखे। लंदन का FTSE 100 0.5% गिरावट पर कारोबार कर रहा था। जर्मनी के डैक्स में भी 0.3% और फ्रांस के CAC 40 में भी 0.22% की गिरावट चल रही थी। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं अमेरिकी शेयर बाजारों का क्या हाल रहा लालिमा के साथ। लेकिन आज शायद अमेरिकी शेयर बाजार की स्टोरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल वहां बंदी थी। और अगर इसके पहले हफ्ते का अमेरिकी शेयर बाजार हम देखें तो एक तरीके से जो रेट कट्स की लेकर यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली थी, तो उसकी वजह से वहां हमने देखा कि किस तरीके से नैस्डैक में थोड़ी सी बढ़त देखी गई थी। लेकिन कुल मिलाकर कुमार अगर देखें कि एशियाई मार्केट, यूरोपीय मार्केट जहां बहुत ज्यादा रोबस्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत गिरावट भी नहीं है, चल रहा है धीमे धीमे। तो इस वर्ल्ड मार्केट पे आपका क्या नजरिया है? अगर Asian market is something right now looking into two important things. One is the geopolitical scenarios and second is the oil one. दोनों का दोनों अगर ऑयल के हिसाब से देखेंगे और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज देखेंगे जितना कंफ्यूजिंग है, तो ये जो है ये मार्केट को नर्वस कर रखा है। ऐसे एक चीज और बताएं कि जो आज का करेक्शन है या आज का जो मूवमेंट है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ कि इससे कहीं हम कोई एक बहुत बड़ा सिग्नल ले सकते हैं कि कई बार मार्केट कुछ छोटे और ये कुछ रीजनल रीजन से या प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में मूवमेंट रहता है। लेकिन एशिया का मेन रीजन ये है। सो फार एज अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में अनडाउटेडली बहुत महीने से आप कह सकते हैं कि जून से ही मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट होना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश रेट कट टलता रहा है। और अब जो फेड की जो हेड है मैडम, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, अब नाउ इट इज अ हाई टाइम, वी विल गो फॉर इट। तो जो मिड सितंबर में जो है अब वो उम्मीद की जा रही है कि अब रेट कट होगा। और रेट कट ही नहीं बल्कि उम्मीद ये भी हो रही है, दो तीन इश्यू ऐसे हैं। एक लेबर मार्केट के फिगर के कारण उनको थोड़े से हिचक थी। वो मार्केट के लेबर मार्केट का फिगर, जो एम्प्लॉयमेंट का फिगर है, वो थोड़ा हेल्दी है। इन्फ्लेशन भी अब कंट्रोल्ड है, उनका 3% से नीचे आ चुका है। लेकिन बात है कि सितंबर के बाद 3 कंसेक्यूटिव उम्मीद की जा रही है कि 3 बार लगातार जो स्केड्यूल्ड है, इवन अप टू जनवरी दे विल गो फॉर कंटिन्यूअस कट। तो वो कट पे तो जाएंगे, लेकिन वहां इलेक्शन भी है। और जब नवंबर में आएगा तो वहां पे जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का क्या पॉलिसी पे इम्पैक्ट होगा वो भी डिसाइड करेगा। तो इसलिए भी फेड से ये उम्मीद होती है कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जो सितंबर का जो अपॉर्चुनिटी है अभी इस मंथ का, इसलिए पूरा वर्ल्ड इस बात को अब ध्यान में रखे हुए है कि ये रेट कट शायद पॉसिबल हो सके। राइट। और ये उम्मीद हो रही है कि अब वो, और उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। All right, let's move on to the RBI story. Dr. Michael D. Patra, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, stated that a robust finance sector is crucial for underwriting India's inclusive and sustainable future due to its role in facilitating capital accumulation, lowering transaction costs and managing risks. While addressing the Financing 3.0 Summit organized by the Confederation of Indian Industry, CII as we call it, in Mumbai today, Dr. Patra highlighted India's remarkable growth story. Dr. Patra emphasized that the role of finance in shaping and reshaping India's future is indisputable, given the deep nexus between finance and growth. Dr. Patra outlined 5 specific sectors, including infrastructure financing, micro, small and medium enterprises, skilling, climate change and digitization, where finance will be pivotal in supporting India's rise as a major power. और विश्व बैंक ने भारत के लिए बड़े ही अच्छे आंकड़े दिए हैं। विश्व बैंक ने साल 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पहले के पूर्वानुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारकों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास
पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तिमाही आकलन में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7% आंकी गई थी। इस पे तो आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। ये आपका प्रिय विषय भी रहा है, जीडीपी। आप लगातार देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी जो है ये वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, उसको बढ़ा रही है। उस पर एक जबरदस्त भरोसा पूरी दुनिया कर रही है। क्या वजह है इसकी? जीडीपी के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, उस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में भारत अपना एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। जैसे भारत में एक जो सबसे अच्छी बात क्या शुरू हुई है वो ये कि जो कंसंट्रेटेड सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन के बेसिस पे इकोनॉमी जो रन करती थी, वहां पे इकोनॉमी में विस्तार हुआ है। और ये रूरल इकोनॉमी, रूरल प्रोडक्टिविटी, ये भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी हर क्षेत्र में पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और वो जीडीपी के फिगर में दिख रहा है। और इसीलिए देखिएगा कि मिला जुला के 6.8 से लेके 7.2, 7.4 के आसपास का ये फिगर हर कोई आंक रहे हैं, जो अब अचीवेबल है। ये एक जो इसमें मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं, या कह सकते हैं कि इस पर जो ध्यान सबका आकर्षित करना चाह रहा हूं, कि एक तरफ भारत में एक और अच्छी बात ये हो रही है कि अब हम लोग एक टारगेटेड जीडीपी की तरफ जा रहे हैं। एक पैसिव जीडीपी कैलकुलेशन होता था, लेकिन अब हम एक्टिव जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कि एक लिमिट पे जाके जीडीपी हमारा एक अचीव करे, और वो अचीवमेंट के लिए ये ग्रोथ का होना जरूरी है। और प्रश्न ये है कि जो जैसे 2047 का जो टारगेट है, या उससे पहले अगर 2031 की बात करें, 2030-31 तक जो हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या इस ग्रोथ रेट से अचीव कर सकते हैं? तो उत्तर है कि अगर सिंपल एक कैलकुलेशन करें तो उससे नहीं मिलने वाला है। तो हमें ये 7% है, और इसकी मुहर कह सकते हैं आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, या इससे पहले फिच ने भी कहा है, इन सबों ने मुहर लगाया है। लेकिन हमें इससे कहीं और ज्यादा ग्रो करने की आवश्यकता है, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं जीडीपी के मामले में। बिल्कुल, लेकिन अगर इस रेट से भी हम 7 से 8% के बीच से कहीं बढ़ते रहे तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, क्योंकि जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। तीसरी के लिए तो आराम से कर लेंगे। मैं तो दूसरी की तरफ देख रहा था। All right. Well, a week ago, the government talked of smart cities, industry smart cities, and recently it came up with the 6 schemes for rural areas for the farmers. So I think the government is trying to have an all-inclusive growth, development growth, very true, on both the ends of the spectrum, urban-centric and rural-centric. So I think that's a good sign that may actually take our GDP growth much higher. All right, let's move on to oil now. Oil prices declined today as sluggish economic growth in China accelerated demand concerns in the global crude market. Brent crude was trading at 2.22% down to trade at $75.08 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI was trading at 1.47% down at $72.47 per barrel when reports last came in. बड़ा ही आसान सा है, इसमें समय कम है, इसलिए हम बहुत ब्रीफ में इसको समझना चाहेंगे। जैसी चीन के आर्थिक आंकड़े कम होंगे, वहां तेल की का डिमांड जो है वो कम होगा, और तेल के डिमांड कम होने से थोड़े से प्राइस तो जरूर ही कम होगा। सोने चांदी की भी बात कर लेते हैं, लालिमाई और फेवरेट टॉपिक। सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.24% गिरकर 71,680 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.6% गिरकर 83,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक सोना और चांदी के दाम कारोबार के दौरान नीचे ही चल रहे थे। अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य थोड़ा घटकर 71,515 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही, समय खत्म हो रहा है। कुमार विजय, आप आए स्टूडियो में, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
All right, before we close, friends, as a reminder, the headlines: Indian benchmark indices end flat, Sensex loses 0.01%, while Nifty settles at 25,280. World Bank raises India's growth forecast for current financial year 2024 to 7%. Robust finance sector crucial for underwriting India's inclusive and sustainable future, says Deputy Governor RBI. And crude oil prices slip today as sluggish economic growth in China accelerates demand concerns. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Harsh Ranjan signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.